Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to tell you how to solve SQL queries based on a given table as it is being asked in board exam. बोर्ड एग्जाम में आपने देखा होगा टेबल आती है, टेबल के ऊपर बहुत सारी क्वेरीज पूछी जाती हैं, चाहे वो टेबल क्रिएशन का हो, चाहे उसमें कॉलम्स ऐड करना हो, कॉलम्स डिलीट करना हो, रोज पर कोई ऑपरेशन करना हो, दैट इज I mean manipulation of the rules or applying group by order by and all many commands can be asked from that table. So without any delay let us proceed. I have prepared one table student. Out of that there are so many questions, so many queries to be done. Each and every query will be solved here in front of you practically as well as theoretically. So let us begin with. So here is a table given. You can see this table. Uh, Consider the table student given below. Write MySQL commands for first to 10th. Part first to 10th. You have to write the command, then output for 11th to 15th. Here are the columns of the table student. Table is also called as relation in RDBMS terminology. Name, class, date of birth, sex, city and marks. Marks out of 500. तो ये दिए गए हैं इसमें से हमें वी हैव टू आई मीन solve these queries. So it is better to create this table first in the DBMS. तो मैं MySQL लोड करता हूँ, MySQL में जाकर के पहले मैं ये टेबल क्रिएट कर देता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कैसे क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी. तो let us create the table first. Before creating, let us create a database. Create database. As you know that for creating any table a database must be created first. So I am creating a database temp, or let us see if there is any database there only I can create any table. So we will see the list of databases. Show databases. It is displaying the list of databases. Let us open D1 and see what is there. Use D1. Opens the database, makes the database D1 active. इसे एक्टिव कर दिया, मैसेज आ गया डेटाबेस चेंज्ड. शो टेबल्स करेंगे तो इस डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे. यहाँ पर स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी है तो मैं यूज़ करता हूँ D2. D2 में let us display all tables. There is only one table T1, so we will design the table within the database D2. D2 is already in use, that is already open active. इसके अंदर हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं. टेबल क्रिएट करने की कमांड मैंने पहले ही लिख दिया है टाइम सेव करने के लिए. तो ये आपकी कमांड मैं यहाँ पर कॉपी करके आई एम गोइंग टू पेस्ट इन MySQL. MySQL में पेस्ट करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा, या सॉरी एडिट में जाना पड़ेगा और कमांड को पेस्ट करना पड़ेगा. सो आई हैव पेस्टेड द कमांड हेयर. प्रेस एंटर. क्वेरी ओके. that means this table is created. Create table student bracket name varchar 15, class char 3, date of birth date, sex char 1, city varchar 10, marks int 3. You might have created such tables so many times. Purpose is not I'm not going to teach you how to create the table, rather I will sort out your queries based on this table. इसमें इंसर्शन भी कर देता हूँ, मैंने इंसर्ट कमांड यहाँ लिख रखी है. सो लेट अस इंसर्ट वन बाय वन. तो यहाँ मैं आ गया. यहाँ पर कंट्रोल भी नहीं चलेगा, एडिट में जा करके आपको पेस्ट करना होगा. एंटर किया, वन रो इंसर्टेड. सिमिलरली ऑल रोज हैज टू बी इंसर्टेड. यहाँ से कॉपी किया, अगेन द सेम प्रोसीजर, पेस्ट. सेकेंड रो इंसर्टेड एंड सो ऑन. इसी तरह से मैं सारी रो इंसर्ट कर दूंगा.
इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज करके सारी वैल्यूज दी गई है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज विद इन ब्रैकेट each and every value. If it is numeric, you have to write without inverted commas. If it is char and varchar, you have to write within inverted commas. The date and time value is also to be written within inverted commas only. कहीं डेट या इसकी टाइम की एंट्री है वो भी आपकी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखनी है। 4 रिकॉर्ड मैंने पेस्ट कर दिया। नाउ पेस्टिंग द फिफ्थ वन, कंट्रोल सी। थोड़ा सा you have to have some patience because it is a lengthy procedure copying and pasting over there. मैंने आपकी फिर भी आपका काफ़ी टाइम बचाया है। इस कमेंट को मैंने पहले ही टाइप कर लिया था so that there should not be any wastage of time while sorting out your queries. यहाँ पर देखिए कंट्रोल वी मैंने प्रेस कर दिया एज यूजुअल, बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तो कैरेट का साइन आ जाता है। So this is again second last record inserting। ये आपका सेकेंड लास्ट हो गया एंड देन लास्ट रिकॉर्ड ये मैंने पेस्ट किया और एंटर। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, बड़ा धैर्य रखा आप लोगों ने। अब हमारा जो है सारा रिकॉर्ड इसमें डेटाबेस में D2 में टेबल स्टूडेंट के अंदर इंसर्ट हो गया। नाउ आई वांट टू वेरीफाई वेदर एवरी रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्टेड प्रॉपरली और नॉट फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि मेरी टेबल बन करके तैयार हो गई है एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ पहला क्वेश्चन कहता है टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ मेल्स whose cities neither Delhi nor Mumbai। तो मैं इस कमेंट को कैसे लिखूंगा, यू कैन जस्ट सी। कमेंट को मैं जो आंसर लिखूंगा उसे रेड में कर देता हूं। सेलेक्ट, आई विल राइट सेलेक्ट डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन। ऑल इंफॉर्मेशन मीन्स स्टार, all information means all columns from table name is student। ओके और क्या कह रहा है, फॉर मेल्स whose cities neither Delhi nor Mumbai। तो आप यहां पर लिखेंगे वेयर, कंडीशनल है, वेयर सेक्स इज इक्वल टू सिंगल कोट में एम फॉर मेल एंड के साथ एडिशनल कंडीशंस डिफाइन कीजिए। सिटी इज नीदर दिल्ली नॉर मुंबई, तो लिखेंगे आप नॉट सिटी इन या सिटी नॉट इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हैं। इन में आप दिल्ली और मुंबई लिख दीजिए, इसमें आप लिख दीजिए दिल्ली एंड मुंबई, दिल्ली कॉमा मुंबई। मैं इसको लिख भी सकता था, पहले से लिख करके रख सकता था। Now here you can see select star from student where sex equal to M and not city in Delhi comma Mumbai। इन ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, इनके थ्रू वी कैन गिव द लिस्ट ऑफ वैल्यूज। सिटी इन दिल्ली कॉमा मुंबई लिखेंगे तो दैट मीन्स सिटी इक्वल टू दिल्ली और सिटी इक्वल टू मुंबई। नॉट सिटी इन, ठीक है, नॉट सिटी इन नहीं, ये यहाँ पर नॉट सिटी इन नहीं, यहाँ पर सिटी नॉट इन, यहाँ से हटाइए इसे और यहाँ लिखिए इन ये लगाएं या नॉट इन लगाएं। इन लगाएंगे या नॉट इन लगाएंगे, नॉट इन लगाएंगे तो उसका नेगेटिव हो जाएगा दिल्ली मुंबई को छोड़ करके। इसका ऐसा भी लिख सकते हो वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली और सिटी इक्वल टू मुंबई, ऐसा भी ये लिख सकते हैं। या सिटी यहाँ पर इस केस में होगा सिटी नॉट इक्वल टू दिल्ली और सिटी नॉट इक्वल टू मुंबई, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो लेट अस राइट दिस, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ चले गए एंड हेयर आई एम पेस्टिंग। तो देखिए यहाँ पर यू आर गेटिंग
the records of Agra and Moscow. Okay, not Delhi and Mumbai. दिल्ली और मुंबई को छोड़ करके हमें जो है मेल मेंबर्स का जिस मेल मेंबर्स देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ पर मॉस्को में एक है और दिल्ली मुंबई हमें करना नहीं है डिस्प्ले, तो एक मेल जो है वो आगरा में है. सो दैट वे दिस कमांड इज करेक्ट. नाउ लेट अस मूव टू अनदर कमांड. अगर इसी कमांड को आप ऐसे भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं. सी सिटी सिटी नॉट इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं और एक्सक्लेमेशन इक्वल टू भी लिख सकते हैं. नॉट इक्वल टू दिल्ली और सिटी नॉट इक्वल टू मुंबई. ओके, सेमीकोलन. सो यहाँ पर एंड लगाना पड़ेगा आपको. सिटी नॉट इक्वल टू दिल्ली और सिटी नॉट इक्वल टू मुंबई हो गया. यहाँ पर एंड लगाइए क्योंकि और में तो ये सिटी नॉट इक्वल टू दिल्ली भी ट्रू हो जाएगा और सिटी नॉट इक्वल टू मुंबई भी ट्रू हो जाएगा. दैट इज वाई दिल्ली और मुंबई दोनों आ रहे हैं. तो जब मुंबई है तो दिल्ली नहीं है, दिल्ली है तो मुंबई नहीं है, आगरा मॉस्को तो अपने आप आएंगे. इसलिए इस कमांड को फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा और यहाँ पर हम लगाएंगे एंड. then you will get the same record as you were getting here. So this command can also be written. इसको और कई तरीके से लिखा जा सकता है. नॉट और ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिटी इक्वल टू मुंबई और सिटी इक्वल टू दिल्ली. कई तरीके से आप लिख सकते हैं. सो लेट अस गो टू द वर्ड फाइल. तो यहाँ पर आप इस चीज़ को और भी लिख सकते हैं. एंड जैसा मैंने अभी लिखा, कंट्रोल सी एंड क्या लिखा आपने, सिटी नॉट इक्वल टू दिल्ली एंड सिटी नॉट इक्वल टू मुंबई. ऐसा भी लिख सकते हैं आप इस कमांड को. और कैसे लिख सकते हैं, एंड नॉट सिटी इज इक्वल टू दिल्ली और सिटी इज इक्वल टू मुंबई. लेट अस सी ये थर्ड कमांड काम करेगी कि नहीं करेगी. एंड नॉट सिटी इक्वल टू दिल्ली और सिटी इक्वल टू मुंबई. सिटी दिल्ली हो या मुंबई हो उसके लिए ही है और उसमें नॉट लगा दिया. लेट अस सी वेदर दिस वर्क्स और नॉट. कॉपी किया, अगेन पेस्टेड. yes, it is working. Again the same records are coming out. So these are three alternate answers of this question. First one. Let us go to second one. Second query क्या कहती है, to display the detail of all students. So I will write select. यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ just to save the time. Select star from student where तक कॉपी कर लेता हूँ. यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया. Select star from student whose date of birth is after Nishant's birth date, and that is this one. तो जिसका डेट ऑफ बर्थ निशांत की बर्थ डेट इससे बाद में है, तो वेयर DOB is greater than आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 1995
डैश 12-06। तो इससे ज़्यादा जिसकी डेट होगी दैट डेटा इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड। ओके, तो और निशांत की कितनी है, यू कैन जस्ट वेरीफाई। निशांत की ये है। सो इससे बड़ी डेट कौन सी होगी 95 से? 6-12-95, 8-12-95, 8-12, 8-10-95 नहीं है, 8-8 नहीं है, 6-5 नहीं है, 6-6 भी नहीं है, ओनली 8-12-95 is greater than this. So if we copy and paste it over there, let us see whether it is okay or not. तो आप देख रहे हैं नेहा का रिकॉर्ड आ रहा है विच इज ग्रेटर देन द डेट ऑफ बर्थ ऑफ निशांत, दैट इज 6-12-1995. सो दिस वे इट इज ओके। और इसका क्या हो सकता है, इसका एक और हो सकता है बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर करिकुलम। वो कह रहा है कि आफ्टर निशांत डेट ऑफ बर्थ, तो ग्रेटर देन, फिर मैं यहाँ पर सब क्वेरी लिख सकता हूँ बट ये सब क्वेरी आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। सेलेक्ट DOB from student where name is equal to निशांत। तो निशांत की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर आके इट विल रिटर्न दिस क्वेरी विल बी सॉल्व फर्स्ट। ये पहले सॉल्व होगी तो क्या करेगा, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू निशांत। निशांत की डेट ऑफ बर्थ यहां आ गई, देन दिस मेन क्वेरी विल बी सॉल्व, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर DOB ग्रेटर देन, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसकी डेट आ जाएगी। बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर करिकुलम, नेस्टेड क्वेरी इसे कहते हैं, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं इसका आउटपुट देख सकते हैं, द सेम आउटपुट विल अपीयर। सो लेट अस सी इट्स आउटपुट। You can see the same output, Neha 10th this, Neha 10th this detail is being displayed. So this is the answer. ये आपका मैं दूसरे कलर में कर देता हूँ, ब्लू में कर देता हूँ, जिससे आपको पता रहे कि ये करना नहीं है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, दिस इज एक्स्ट्रा आई हैव टोल्ड। ओके, नाउ after this to display, another command is to display all information about class 12. all information select star from student कर लीजिए, select star from student कर देते हैं, पहले यहां से पिक कर लिया, select star from student about class 12th class का, so where class equal to 12th, क्लास इक्वल टू 12th, यहाँ से क्लास इक्वल टू 12th हो गया। एंड अगेन रैंक वाइज, स्टूडेंट रैंक वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर, किसके डिसेंडिंग ऑर्डर में आप करेंगे तो रैंकिंग होगी, मार्क्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, सो यू विल गेट द रैंकिंग ऑल्सो। सो आई विल राइट क्या, अगर आपको ऑर्डरिंग करनी होती है तो आप ऑर्डर बाय का यूज करते हैं, ऑर्डर बाय सॉर्टिंग होगी इस पर, किस पर होगी सॉर्टिंग, मार्क्स पर होगी, MARKS मार्क्स। और असेंडिंग में तो बाय डिफॉल्ट होगा, या यहाँ पर ESC लिख भी सकते हो या इग्नोर भी कर सकते हो, और यू कैन राइट DESC फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। सो दिस इज द कमांड, लेट अस एग्जीक्यूट एंड सी द रिजल्ट आउटपुट इन MySQL। तो यहाँ जा करके मैंने इसको पेस्ट किया, एंटर। सो यू कैन सी क्लास 12th के स्टूडेंट्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट मार्क्स, देन सेकंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट, सो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। ओके, सो इट इज द solution. Now another, list name of all students, we have to list name, नेम किसका किसका चाहिए,
list name of all students। तो यहाँ पर select, इसे रेड कर देता हूँ, select name of all student whose name has the character A। तो आप जानते हैं जब ए से बिगिन हो रहा है, एस पर एंड हो रहा है नाम कोई, या जो है कहीं बीच में कोई नाम का पोर्शन है या कैरेक्टर है, तो उसके लिए हम लाइक क्लॉज का यूज करते हैं और उसमें कंडीशन बनाते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर परसेंट और अंडरस्कोर आपके पास हैं। तो परसेंट जो है वो क्या करता है, अननोन लॉन्ग लेंथ ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, 0 और मोर कैरेक्टर। अगर आप कहते हैं ए से शुरू होता है तो ए परसेंट, एस पर एंड होता है तो परसेंट एस, और ए कहीं भी हो तो परसेंट ए परसेंट करते हैं हम लोग। तो यहां पर लिखेंगे वेयर नेम लाइक परसेंट ए परसेंट, फाइन। तो ये कमांड होनी चाहिए आपकी इसके लिए। तो अंडरस्कोर भी एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, वो आपको वीडियोस में पढ़ाया गया, वहां जाकर के आप देखिए कि अंडरस्कोर का इस्तेमाल कैसे होता है। क्योंकि अगर मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और पर्पस है कि ये क्वेरीज सॉर्ट आउट करूं मैं, जो आपकी अभी क्वेरीज हैं ये सारी। ओके, सो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक ए परसेंट। यहाँ पर कुछ एरर हो गई, इसे एरर कमिट करना पड़ेगा, और फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर ए परसेंट यहाँ पर सिंगल कोट में क्लोज होना चाहिए, देन एंटर। सो दीज आर ऑल नेम्स आर हैविंग ए समवेयर, कहीं ना कहीं सब में ए है, चाहे बिगिनिंग में हो, चाहे एंड में हो, चाहे बीच में हो। परसेंट ए परसेंट मीन्स एनीवेयर। दिस परसेंट, इफ पहला परसेंट अगर आपका 0 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा तो ए बिगिनिंग में आएगा, दूसरा परसेंट अगर 0 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा तो ए एंड में आएगा, और इफ दिस परसेंटेज एंड दिस परसेंटेज हैविंग सम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो ए कहीं भी बीच में आ सकता है। सो ए इज कमिंग somewhere within this name, so this is the correct command। यहाँ पर आपको सिंगल कोट में इसे क्लोज कर देना पैटर्न को। नाउ लेट अस गो फॉर फिफ्थ कमांड। फिफ्थ कमांड क्या कहती है, सी डिस्प्ले नेम एंड मार्क्स of those students। so I will write select name comma marks from student, select name comma marks, marks है कि mark, yes marks from student where, जहां पर मार्क्स की रेंज क्या हो 400 to 500। सो यहां पर मैं बिटवीन क्लास का यूज करूंगा, where marks between 400 and 500, एंटर। सो और इसके अगेंस्ट एक और कमांड हो सकती है आपकी, सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 400 and marks लेस देन इक्वल टू 500, सेमीकोलन। दोनों कमांड काम करेंगी आपकी। इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहां गए, हम लोगों ने यहां पर इसे पेस्ट किया, एंटर। so these are the marks between 400 and 500। similarly the second command will also work। इसी तरह से आपकी ये कमांड भी काम करेगी एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे, सेम आउटपुट will be displayed, pasted, see the same output is coming। okay, 5 rows in the set, 400 to 500, all the detail of name and marks of all students are being displayed।
Now this query says select, display average marks, highest marks and total number of students for each class. जब ईच क्लास आ जाए, फॉर ईच सेक्शन आ जाए, फॉर ईच पोस्ट आ जाए, इस तरह से फॉर ईच कैटेगरी आ जाए, जब भी आपकी कैटेगराइजेशन हो जाता है तो वहाँ पर ग्रुप बाय लगाना चाहिए। यहाँ पर हमें क्लास के ऊपर ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। हर क्लास का एवरेज मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएगा आपको। तो माय कमांड विल बी सेलेक्ट, यहाँ पर कमांड हो जाएगी सेलेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस पर ग्रुप बनाना है उस कॉलम को सेलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि किस क्लास का ग्रुप बन रहा है। एबीजी ऑफ मार्क्स, कॉमा हाईएस्ट मार्क्स, मैक्स ऑफ मार्क्स, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ रोज निकालना पड़ेगा और उसके लिए हमारे पास फंक्शन है काउंट। वहां पर आपको किसी कॉलम का नाम नहीं लिखना, काउंट स्टार विल काउंट नंबर ऑफ रोज। ओके, किसी कॉलम का नाम ना लिखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ बुक्स, फॉर दैट यू हैव टू राइट काउंट स्टार ऑलवेज। और फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट। अब इतना लिखने के बाद आपको ये एवरेज मार्क्स ओवरऑल पूरी टेबल का देगा, इट विल गिव अपॉन होल टेबल। हमें हर क्लास का चाहिए तो यहाँ आई विल राइट ग्रुप बाय क्लास। जिस पर आप ग्रुप लगाएं वो पहले भी सेलेक्ट कर दें, दैट लेट अस सेलेक्ट इट एज ए फर्स्ट कॉलम। अगर पूछा ना भी गया हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम, टू दैट कॉलम ऑन विच द ग्रुपिंग इज टू बी मेड, राइट। सो दैट क्लास 11th की ग्रुपिंग ये है, क्लास 11th का आएगा 11th एवरेज मार्क्स, उसका उसका मैक्सिमम मार्क्स, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर आएगा नीचे 12 उसका एवरेज मार्क्स, देन मैक्सिमम मार्क्स, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट, देन 10th वॉट एवर। इस तरह से फॉर ईच क्लास यू विल गेट दीज एग्रीगेट वैल्यूज। एग्रीगेट फंक्शंस लगे हैं, एग्रीगेट वैल्यूज हर क्लास के लिए, हर ग्रुप के लिए ये डिस्प्ले करेगा। सो दिस इज द कमांड। So let us copy and paste in MySQL and see the appropriate result. ये मैंने कॉपी कर दिया, एंटर। यहाँ आप देख रहे हैं 10th का एक ग्रुप बन गया, इसका एवरेज 439 है, मैक्सिमम इतना है, 10th में 3 स्टूडेंट हैं, 12th का ग्रुप बन गया, 11th का ग्रुप बन गया। फर्ज कीजिए अगर मैं ये कॉलम ना डालता, सेलेक्ट क्लास ना करता, तो खाली हमारा डाटा होता ये और ये। सो आई कुड नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये पहला वाला किस क्लास का ग्रुप है, वेदर इट इज ऑफ 10th 11th और 12th, सेकेंड किसका है, थर्ड ग्रुप किसका है। सो बाय पुटिंग द कॉलम ऑन विच द ग्रुपिंग इज बीइंग मेड in the beginning, if it is included in the select list, so it becomes very easy to identify the groups for each class here, in this case for each type of job, for each type of publisher and all whatever, ठीक है, जिस पर आप ग्रुपिंग करते हैं। नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं, सेवेंथ कमांड इज, सेवेंथ कमांड आप देखें, डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ मेल्स, फिर से वही आ गया, एंड फीमेल्स सेपरेटली, अलग अलग मेल्स और फीमेल्स बताने हैं, along with their एवरेज मार्क्स, यानी मेल का एवरेज मार्क्स अलग, फीमेल का एवरेज मार्क्स अलग। इसका मतलब हमें मेल फीमेल पर ग्रुपिंग करनी है, और मेल फीमेल का कॉलम क्या है, सेक्स है, इसलिए हमें सेक्स पर ग्रुपिंग करनी है। सो लेट अस कॉपी सम पोर्शन ऑफ द कमांड, सेलेक्ट, यहाँ पर जहाँ पर आप ग्रुपिंग कर रहे थे क्लास पर, वहाँ सेक्स पर ग्रुपिंग करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ मेल्स, सो आई विल राइट काउंट, काउंट स्टार, काउंट स्टार, और एवरेज ऑफ मार्क्स, एवीजी ऑफ मार्क्स। Rest of the command will be similar, from student
ग्रुप बाय सेक्स, क्योंकि अब आप ग्रुपिंग मेल फीमेल के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ मेल फीमेल हमारा फीड किस कॉलम में किया गया है? सेक्स नाम के कॉलम में किया गया है, इसलिए सेक्स को मैंने पहले सेलेक्ट लिस्ट में डाल दिया। So this is the command for this. Let us copy and paste in MySQL to see the actual output, how it works. इस तरह से मैंने डाला तो आगे आपका मेल, 4 मेल्स हैं, इसका एवरेज मार्क्स ये है सभी मेल्स का, फीमेल्स 4 हैं, इनके एवरेज मार्क्स ये हैं। तो अगर आप ये काउंट स्टार को नंबर ऑफ मेल फीमेल लिखना चाहते हैं तो इस पर हेडिंग उस तरह से डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेल के लिए फिर आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा, फीमेल के लिए अलग करना पड़ेगा। यहाँ तो आपका काउंट स्टार मीन्स ऐसे ही रहने दीजिए। नाउ सो नाउ लेट अस गो टू 8th कमांड, दैट इज यहाँ पर लिखा है इंक्रीज डिक्रीज, ऐसा कुछ लिखा हो, अपडेट, तो आप तुरंत अपडेट कमांड के बारे में सोचें। इंक्रीज द मार्क्स ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट बाय 5% मार्क्स, तो 10th क्लास के बच्चों का 5% मार्क्स इंक्रीज करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कौन सी कमांड? अपडेट। अपडेट टेबल का नाम, अपडेट टेबल का नाम क्या हो जाएगा? टेबल का नाम हो जाएगा स्टूडेंट। अब सवाल आता है क्या मैं लिखूं अपडेट टेबल स्टूडेंट और ओनली स्टूडेंट? रिमेंबर अपडेट के साथ टेबल कीवर्ड नहीं आता है, तो कहां आता है टेबल कीवर्ड? टेबल कीवर्ड ऑल्टर में आता है, क्रिएट में आता है, ड्रॉप में आता है। रिमेंबर वो डीडीएल कमांड्स हैं, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, क्रिएट टेबल। तो डीडीएल कमांड्स में ज्यादातर कीवर्ड टेबल आएगा, टेबल लिखने के बाद टेबल नेम लिखेंगे। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, इन कमांड्स में जो डीएमएल स्टेटमेंट हैं उसमें टेबल कीवर्ड नहीं आता है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि डीएमएल स्टेटमेंट में टेबल नाम का कीवर्ड नहीं आता। बच्चे ज्यादातर लिख देते हैं अपडेट टेबल, नो, अपडेट देन टेबल नेम डायरेक्टली। इसके बाद आपका आएगा सेट, क्या चीज बढ़ाना है? मार्क्स। तो मार्क्स, इसके लिए एक्सप्रेशन बनाइए, मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस, ये तो आपका पुराना मार्क्स हो गया, प्लस अब कितना इंक्रीज करना है मार्क्स का, यहां ब्रैकेट में लिख दो जो भी इंक्रीमेंट करना है, हमें करना है मार्क्स का 5%, दैट मीन्स 0.05 या इंटू 5/100 भी आप लिख सकते हैं। ओके, दिस विल बी डन फॉर ऑल, बट ही इज आस्किंग फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स ओनली, तो यहां पर आप वेयर लगा दीजिए, वेयर क्लास इज इक्वल टू विद इन सिंगल कोट 10th सेमीकोलन, एंटर। तो ये आपका अपडेट हो जाएगा, कितना? 5% मार्क्स सभी का रेज हो जाएगा। ये हो गया मार्क्स इक्वल टू, यहां बच्चे गलती करते हैं, मार्क्स इक्वल टू सिंपली ये लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं लिखते हैं, ये भी लिखना है आपको, मार्क्स इक्वल टू न्यू मार्क्स इक्वल टू ओल्ड मार्क्स प्लस दिस इज द इंक्रीमेंट टू बी डन। ओके, रिमेंबर, तो ये एक्सप्रेशन लिखते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। कंट्रोल सी, and here I have pasted the command, पेस्ट कर दिया, तो 10th क्लास का जो है 3 रिकॉर्ड है वो अपडेट हो गया। 10th क्लास में 3 रिकॉर्ड था वो अपडेट हो गया। अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नाउ, हमें पहले भी तो 10th का जो मार्क्स है ये 474 हुआ है, 396 हुआ है, 513 हुआ है। पहले हमने सेलेक्ट स्टार कहाँ किया था? लेट अस सी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पर आपका 10th में 451 है, यहाँ कुछ और 474 हुआ था, 377 489 ये नहीं है इसमें, दैट मीन्स द इंक्रीमेंट हैज बीन डन, 396 513 474 हो गया।
So that means the corresponding increment is done. अब आता है सवाल, ये कमांड देखिए आप, 9th कमांड, ऐड ए न्यू कॉलम नेम्ड एड्रेस, टेक डेटा टाइप एंड साइज योरसेल्फ। हमें इस टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है एड्रेस के नाम से, ऐड कर देते हैं। कौन सी कमांड यूज करोगे, बोलिए। यस, आई विल यूज ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल एक ऐसी कमांड है जिसकी हेल्प से यू कैन मॉडिफाई द टेबल स्ट्रक्चर। Table structure means adding column, deleting column, modifying column and its definition, adding and removing the constraints। सारा काम जो है टेबल स्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज के अपडेशन का काम करता है ऑल्टर टेबल कमांड। सो और इसमें डेटा रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं होती, रो रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं होती हैं, टेबल स्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज ऑल्टर टेबल से की जाती हैं, ऑल्टरेशन किया जाता है। आपको पता होना चाहिए टेबल स्ट्रक्चर का मतलब आप जानते हैं, कॉलम नेम, इट्स डेटा टाइप, इट्स साइज, इट्स ए कंस्ट्रेंट इफ एनी एप्लीकेबल ऑन दैट कॉलम। सो फटाफट हम लोग ऑल्टर टेबल यूज कर लेते हैं। ऑल्टर टेबल जैसे रेड कलर में कर लेते हैं सो दैट इट कैन बी डिफरेंशिएटेड। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, ऐड कीवर्ड आएगा, ऐड के बाद एड्रेस, ऐड के बाद कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर, कुछ बच्चे ऐड कॉलम लिख देते हैं, ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम हो सकता है, ऐड के बाद कॉलम लिखोगे तो एरर देगा। ऐड एड्रेस, कॉलम का नाम डायरेक्ट लिखेंगे, उसका डेटा टाइप लिखेंगे, उसका साइज लिखेंगे, सपोज एड्रेस इज ऑफ 30 कैरेक्टर लॉन्ग, और उस पर कोई कंस्ट्रेंट लगाना है तो लगाएं, अदरवाइज यहीं पर कमांड आपकी एंड हो जाती है। So if I copy and paste over there, so we will see the actual situation, what changes are being done in the table। पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया, तो क्वेरी ओके हो गई। अब आप सेलेक्ट स्टार कीजिए जरा, क्या होता है। एक कॉलम यहाँ एड्रेस ऐड हो गया, ऑल वैल्यूज आर नल राइट नाउ। बाय डिफॉल्ट इफ एनी न्यू कॉलम इज एडेड तो उसमें सारी वैल्यूज नल प्लेस हो जाती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट कमांड, लास्ट कमांड, लास्ट क्वेरी आपकी, ऐड प्राइमरी की टू कॉलम नेम। नेम कॉलम पर प्राइमरी की लगाइए, क्योंकि प्राइमरी की अभी तक इस पर नहीं लगा हुआ। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर डिस्प्ले करो, डिस्क्राइब स्टूडेंट, इट विल डिस्प्ले द टेबल स्ट्रक्चर। इसमें आप देखिए नेम कॉलम पर कोई प्राइमरी की नहीं लगी है। अभी मैं प्राइमरी की ऐड करूंगा तो यहाँ PRI लिख करके आ जाएगा। लेट अस सी, ये किससे होगा, ये भी ऑल्टर टेबल से होगा। ऑल्टर, इसे रेड कलर करते हैं, रेड कलर किया, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, देयर आफ्टर ऐड प्राइमरी की। प्राइमरी की किस कॉलम पर प्राइमरी की लगाना है, नेम पर। What will happen after this? Once the primary key is implemented on column name, then no any duplicate value will be allowed to be added or updated in this column। इस कॉलम में एक ही नाम की दो वैल्यू इसके बाद से अब आप ऐड नहीं कर पाएंगे या अपडेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्राइमरी की इज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स which is unique for each row। तो हम डुप्लीकेट वैल्यूज, इट इग्नोर्स द डुप्लीकेसी। ओके, डेफिनेशन लिखने के लिए आती है, डेफिनेशन प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, सब याद कर लीजिए। इंप्लीमेंटेशन केवल प्राइमरी की और फॉरेन की का होता है, बाकी तो डेफिनेशंस हैं। कैंडिडेट की एंड अल्टरनेट की आर द डेफिनेशंस। ओके, नाउ इफ आई copy and paste this command, what is the actual scenario in MySQL? Let us see। पेस्ट किया, एंटर, सो एडेड प्राइमरी की। लेट अस डिस्क्राइब एंड सी द स्ट्रक्चर। बच्चों यहाँ पे DESC की जगह आप डिस्क्राइब भी लिख सकते हो, आपको पता होगा। डिस्क्राइब कैन ऑल्सो बी रिटन
Remember the same thing is coming here. You can see now primary is coming. यहाँ पर आपका name के सामने PRI primary key नहीं था. Now primary key is implemented. Fine. So this is the command and its effect. Now अब हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, इनका आउटपुट हमें बताना है. तो ये क्या होगा? नेम डिस्प्ले होगा, क्लास डिस्प्ले होगा, सिटी डिस्प्ले होगा. फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास 12th एंड सिटी मुंबई. सो क्लास 12th वालों का जिसकी सिटी मुंबई है, यानी ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बिकॉज एंड ऑपरेटर इज इम्प्लीमेंटेड. सो once a row having class 12th and city Mumbai, its name, class and city will be displayed. तो जरा देखिए इसमें 12th क्लास वाले सिटी मुंबई ये रो डिस्प्ले होगी. इसमें देखिए ये भी रो डिस्प्ले होगी, सिटी मुंबई है और क्लास 12th है और बाकी नहीं है. तो ओनली 2 रोज आर गोइंग टू बी डिस्प्ले. सौरभ वाली रो डिस्प्ले होगी और त्रिशला वाली डिस्प्ले होगी. Let us copy and paste this command. What happens? हम लोग देखते हैं इसको करके. कंट्रोल C किया और पेस्ट किया. देयर इज सम. अच्छा यहाँ 11th लिख उठा, इसको 11th को आपको हटाना पड़ेगा. 11th यहाँ से हटाइए, पार्ट नंबर भी आ गया यहाँ पर पेस्ट हो करके. So you remove it. Now you see column 12th in where class equal to 12th and city equal to Mumbai. तो क्या दिक्कत है? अननोन कॉलम. अच्छा 12th में ये डबल कोट कंसीडर कर रहा है. इस कमांड में जाकर के ये कोट्स जो है वो चेंज कर दो. कोट्स जो है ये सिंगल कोट यहाँ पर ये है और ये कुछ और सिंगल कोट को कुछ और मान रहा है जो वहां से पेस्ट किया गया है. यहाँ भी मैं मुंबई में भी चेंज कर देता हूँ. सिमिलरली yes, done. Now you can see name, class, city. Name, class, city for class 12 having city Mumbai is being displayed. Saurabh and Trisla as we have discussed. तो अगर इसका हमें ये करना है क्या नाम ये जो आउटपुट है वहाँ लगाना है, तो हमने इसको सिंपली प्रिंट स्क्रीन कर लिया और इसे मैं पेंट में ले जा कर के पेस्ट कर देता हूँ. और यहाँ से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एग्ज़ाम अपनी प्रैक्टिकल फाइल तैयार करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं. सो आई कैन जस्ट कट एंड पेस्ट ओवर देयर. तो मैं वर्ड फाइल में यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से. फाइन. सो ये इसका आउटपुट आपके सामने दिख जाएगा. नाउ अनदर कमांड इज, इसका भी आपको आउटपुट देना है. सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सेक्स फ्रॉम स्टूडेंट. अलग अलग सेक्स कॉलम पर डिस्टिंक्ट लगा है तो यूनिक वैल्यू ऑफ सेक्स विल बी डिस्प्लेड, दैट इज M and F. तो इसमें आप देखेंगे तो M और F ये डिस्प्ले करेगा. इसका कॉपी पेस्ट किया. M और F टेबुलर फॉर्म में ही आपको आउटपुट लिखना है बोर्ड एग्जाम में. रिमेंबर, जैसे ये टेबल आ रही है सामने, यू कैन सी द टेबुलर फॉर्म. ऊपर नेम, क्लास, सिटी ऐसी टेबल बनाइए, फिर उसके बाद उसमें आउटपुट लिखिए इस तरह से टेबुलर फॉर्म बना करके आउटपुट लिखना. सिंपली आउटपुट नहीं लिखना, जस्ट टू गिव द बेटर इंप्रेशन टू द एग्जामिनर. तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. देयर इज नो डिडक्शन ऑफ मार्क्स. देखिए यहाँ पर ये यूनिक सेक्स F और M एक बार डिस्प्ले हो जाएगा. डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है? इस कॉलम की वैल्यू, रिपीटेड वैल्यू को केवल एक बार डिस्प्ले करता है. ओके. सो इसको भी मैंने प्रिंट स्क्रीन किया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया. कंट्रोल V. ज़रा फिर से आप कंट्रोल N करके फिर से पेस्ट करता हूँ, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, सो दैट आई कैन क्रॉप इट आउट. इसको मैंने क्रॉपिंग कर लिया. ये अगर आप इतना पोर्शन भी क्रॉप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कंप्लीट पोर्शन विद दिस मच. वैसे ऊपर वाले की ही ज़रूरत है.
So here I can paste. Now third command you can see is select name, date of birth, day name of DOB from student where marks greater than equal to 400 and sex equal to F. तो जिसका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 400 है और सेक्स एफ है, पहले वो सर्च करो। इन कंडीशंस को, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई जहां होती हैं उनके नेम, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ का डे नेम। डे नेम में संडे, मंडे, ट्यूसडे इस तरह से आएगा, जिसका बर्थ डे जिस डेट को है उसका डे नेम भी आएगा। तो पहले यहां से मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 400 देखिए, और क्या था, सेकेंड कंडीशन वाज एफ, फीमेल्स का। फीमेल्स हमारे पास ये है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 400 नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका है और इसका है। तो इन दोनों का हमें डिटेल आएगा। दैट मीन्स सनल का और त्रिशला का, इनका दोनों का आएगा। सो लेट अस गो फॉर I mean executing this command and see what happens. In MySQL I have gone and pasted this command. यहाँ से आकर के ये 13 जो लिखा हुआ है इसे मैंने रिमूव कर दिया। ओके, प्रेस एंटर। सो सनल और त्रिशला का आप देख रहे हैं ये फ्राइडे और इसका आ रहा है ट्यूसडे। सो लेट अस कॉपी एंड पेस्ट देयर थ्रू क्रॉप। इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ, इतना पोर्शन। फ्यूचर के लिए ये जो फाइल है मैं वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, सो दैट यू कैन रिव्यू इट एंड फॉर रिवीजन पर्पस। ऑल राइट, नाउ यहाँ से देखें अब ये कमांड क्या कहती है। सेलेक्ट सिटी देन मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी। हर सिटी का मैक्सिमम मार्क्स, ओके, सिटी वाइज मैक्सिमम मार्क्स क्या है वो डिस्प्ले करेगा। मुंबई का कितना है, आगरा का कितना है, इसका कितना है। लेकिन आउट ऑफ दो सिटीज, ऑल सिटीज, ओनली फॉर दिल्ली एंड मुंबई इट विल बी डिस्प्लेड। ओके, सो दो ग्रुप्स डिस्प्ले करेगा, दिल्ली उसका मैक्सिमम मार्क्स और मुंबई उसका मैक्सिमम मार्क्स। आगरा और मास्को का नहीं डिस्प्ले करेगा, बिकॉज यहाँ ग्रुप बाय के साथ क्या लगा है, हैविंग के साथ कंडीशन लगी हुई है। दैट मीन्स हैविंग सिटी इक्वल टू दिल्ली और सिटी इक्वल टू मुंबई। So only for Delhi and Mumbai, two groups will be displayed with maximum marks. Let us copy and see the result. इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, pasted. Again you have to remove this part number, 14 has to be removed. I have removed semicolon. यहाँ भी कोई एरर है, इसलिए इसको फिर से मैंने एरर किया और फिर से इसकी कॉपी देखता हूँ। वेयर इज द एरर, सेलेक्ट सिटी मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी हैविंग सिटी इन। ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है MySQL। यहाँ पर मुंबई में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा हुआ है, दैट वाज द प्रॉब्लम। सिंगल कोट, then Delhi, single quote. All right, now let us press enter. So we are getting Delhi 400 and Mumbai is 462. This is the output. इसे मैंने print screen किया and then crop it out. Control V. यहाँ से मैंने cropping किया, cropped out. क्वेरी टाइम भी मैंने देख क्रॉप किया है। तो क्वेरी टाइम जो है क्रॉप करना ज़रूरी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना पोर्शन क्रॉप करना चाहते हैं। दैट इज योर चॉइस, करेंगे तब भी ठीक है, अदरवाइज ऑल्सो इट इज ओके। लास्ट कमांड ऑफ दिस एक्सरसाइज, सेलेक्ट राउंड ऑफ एवरेज ऑफ मार्क्स कॉमा 0। मार्क्स का, पूरी टेबल का मार्क्स का इसने एवरेज निकालेगा और अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप करेगा। और इसी तरह से पूरी टेबल का एवरेज मार्क्स निकालेगा, किसके लिए, क्लास 10th वालों के लिए।
क्लास 10th का केवल एवरेज मार्क्स निकालेगा और उसको ट्रंकेट कर देगा, एक डिजिट तक रखेगा डेसिमल के, बाकी ट्रंकेट कर देगा, और ये अप टू 0 डेसिमल प्लेस से ये राउंडिंग करेगा। सो लेट अस सी व्हाट इज द रिजल्ट, क्योंकि एवरेज आपको कैलकुलेट करना पड़े 10th क्लास वालों का। 10th क्लास के मार्क्स कौन से हैं देख लेते हैं। 10th क्लास के मार्क्स हैं, एक तो ये है 377 और ये है 489 और ये है 10th क्लास का 451। तो ये तीनों मार्क्स को वो टोटल करके 3 से डिवाइड करेगा और उसके बाद उसका जो एवरेज आ जाएगा उसको 0 प्लेस तक राउंड अप करेगा और ये अप टू 1 प्लेस ट्रंकेट करेगा रख करके। सो लेट अस सी आफ्टर पेस्टिंग इट इनटू MySQL, इसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं वहां से। आपको ऑब्वियसली जब आंसर शीट में लिखना होगा, आंसर शीट में लिखने के लिए आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो ये आ गया 461 0 प्लेस तक राउंड अप, और इसका आ गया 461.0, ये एक प्लेस तक रख रहा है, ट्रंकेट कर दिया बाकी, और ये जो है 0 प्लेस तक राउंडिंग कर दिया, यानी कि 0.0 ही आया था उसमें, दैट मीन्स 461 उसका एवरेज आया था, दैट मीन्स दैट इज वाई बोथ द आंसर्स आर कमिंग इक्वल। सो इसको मैंने फटाफट जो है विदाउट एनी डिले, वीडियो लंबी हो गई है, विदाउट एनी डिले लेट अस कॉपी पेस्ट एंड क्रॉप दिस कमांड्स आउटपुट। इस कमांड का आउटपुट आपको लिखना पड़ेगा ऐसे टेबल बना करके, ये करेक्ट आउटपुट क्या आएगा, ऐसे यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा, यू डोंट हैव पीसी टू कॉपी एंड पेस्ट एंड राइट द कमांड ओवर देयर। ये मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे करना है सॉल्व। दिस इज जस्ट फॉर योर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये मैं यहाँ पर टेबल बना करके लिखना नहीं चाहता था कि टेबल बनाऊं और वो सब लिखूं आपके लिए, so that this file can be pasted in the description box of the video। so यहाँ पर आपका सारा सॉल्यूशन हो गया। ये जो आप आंसर शीट में लिखेंगे, ये आउटपुट, इसको इस तरह से टेबल बनानी होगी आपको, यहाँ टेबल में से हर चीज़ आइडेंटिफाई करके कैलकुलेट करनी होगी, क्या आउटपुट आएगा, टेबुलर फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 2 रो इन सेट सेकेंड्स, ये नहीं लिखना आपने, ओनली दिस मच पोर्शन, और इस तरह से बनाएंगे टेबुलर फॉर्म में, दिस विल बी द आउटपुट। तो इसके लिए आपको अप्रोप्रिएट मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि मैं MySQL क्वेरीज किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे ही पूछे जाएंगे। सो प्लीज़ प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, एंड आने वाले टाइम में मैं इस तरह की और वीडियो और एक्सरसाइजेस के साथ आपके सामने आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आप देखते रहिए, इस तरह की एक्सरसाइजेस फ्यूचर में भी मैं बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।